how a marketing of a particular brand stays with you? Growth is my priority. पैसे तो आते रहेंगे. No sustainable business is built on one-time purchase. Everything related to product. Your product should be bang on. If you're targeting everyone, you're not targeting anyone. With the growth of AI, niche is not the biggest thing. You can be a multi-dimensional person. You can have multiple niches. What ties them all together is how you talk about it. Brand आप जितना personal बनाओगे, जितना human बनाओगे, उतना चलेगा. It's very simple to get views. Yeah. But it's extremely hard to get them. So what is your worst piece of advice then? Not every advice is a good It's a advice. good advice. Agencies and freelancing is just a different version of 9 to 5. हम शायद systems के लिए नहीं बने. What is your take on that? Podcast है dead, कुछ future नहीं है, छोड़. All right, hi everyone. Welcome back to the Skillset School. As I always say, this is that one school you never knew you needed. The skill that we're going to talk about is actually podcasting today. And rather than podcasting, I should say, we have a guest who does this really cool stuffs, and you will genuinely like her because of the brand that she has made. And it's really something crazy because when I listen to the name of the podcast, it's Just Because by Muskan. And she's none other than Muskan Goyal sitting next to us. Thank you so much, Charu, for having me. This is the sweetest the introduction that I've ever received. Coolest. True. And I really want to talk about the cool merches that you've made. Just Because Can, Just Because Did. Yeah. So it's like something that we never heard of that way. Yeah. And it gives me so much of motivation and morale when we say just because we wanted to, Yeah. just because we did it. So it is really going to be a crazy conversation because we know that you are into marketing, designing, all of those stuffs. Yeah. But, officially, there's nothing as such where I can find what Muskan Goyal is and what Muskan Goyal does. So Yeah. the first question that I want to start the podcast is with who is actually Muskan Goyal? Oh my God, why are you starting with such a heavy question, Charu? Who is Muskan? I honestly don't know. And I'm on a journey to figure that out with Just Because, I would True. say. Because I was very clueless 2 years back when I was I'm still freelancing into content, into brand strategy, into social media. And I've been doing it for the past 5 years, 6 years. And 2 साल पहले I was feeling very stuck, कि यार पैसे तो आ रहे हैं पर growth उतनी है. And अभी I was 24 at that time, 23 or 24, और मेरे को यही लग रहा था that right now growth is my priority. पैसे तो आते रहेंगे, हाँ. So I was like, fuck everything. कुछ करते हैं. So I was watching a podcast randomly and I was like, चलो podcast क्यों नहीं कर सकते? हाँ. So the idea why I'm talking about this is because I was like, इससे मुझे नहीं पता क्या होगा, पर इससे मुझे अपने बारे में बहुत पता लग जाएगा. True. लोगों से बातें करके, नेटवर्क बिल्ड करके, मार्केटिंग करके, सब करके, एंड रिजल्ट ये होगा कि I'll figure myself out. Yeah. ग्रोथ हो जाएगी. हाँ. So to answer मेरे को नहीं पता, but I'm on a journey to navigate it. And the name Just Because is very personal because again, everything starts from a Just Because. Yeah. If you think about it. True. काम जॉब क्यों छोड़ी Just Because, लेट क्यों आए Just Because, डांट क्यों पड़ी Just Because. So I was like, ऐसी स्टोरी से तो मुझे लानी है आगे. हाँ. एंड आई वांटेड टू कीप इट वेरी ओपन एंडेड. मैं ऐसी थोड़ी इंसान हूँ जो मैं बोर हो जाती हूँ 1 साल में चीज़ों से. True. सो मेरे को था कि यार अगर 2 साल बाद मैं बोर भी हो गई पॉडकास्टिंग के आइडिया से, then I want something that is very expandable. नाम में मुझे कुछ ओपन ही रखना है. So that's why Just Because just fit into anything. Yeah. And that's the gist. It is so much important to know that we still haven't figured out. And I'll tell you this, हमारी जितनी भी बड़ी जर्नी हो, all the time we are figuring out. हमें नहीं पता होता यार कि हम क्या हैं, और टाइम के साथ हम कितने बदल जाते हैं. मतलब मुझे लगता है we are not even the same person after an year or so. Year, 6 months. 6 months or so. और मतलब उसके बाद भी आपको ये बोलना कि I know myself. Sometimes
हम शायद एक रिलेशन में भी समझा नहीं पाते सामने वाले को कि हमें क्या चाहिए, बिकॉज वी ourselves don't know what we Yeah. actually want. Yeah. And it is so much important to figure out along the journey. Like एक ना बहुत प्यारा सा quote है, we say it, the more you fuck around things, The more you find the more out. you find out, the more you Yeah. figure out. So you're kind of giving me that vibe also. Yeah. But ये 100%. merge कहाँ से आया, मतलब बीच में चलो ठीक है, just because तक समझ आया, you wanted to keep this podcasting, but you've made this cool merch that Yeah. it is so pretty, so Thank so you. tiny. Thank you so Like, much. ये कहाँ से and why? Yeah, so the idea of Just Because from day zero हाँ. was very clear कि मेरे को बस podcast नहीं करना. Oh. I want to explore a lifestyle around it. You know, because I've been working with so many e-commerce brands कि मेरे ना DNA में घुस गया है lifestyle, marketing, and you know कि have to blend in a user's life. So मेरे को था कि यार बस podcasting से तो मैं भी बोर हो जाऊंगी. I knew myself इतना. हाँ. तो मैंने कहा कि ठीक है, इसको हम एक नॉच आगे कैसे लेके जा सकते हैं, बिकॉज आई ट्रूली फील कि अच्छा जैसे पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद आप अपने घर चले जाओगे, मैं अपने घर चली जाऊंगी, हाँ. फिर हमारा नेक्स्ट इंटरेक्शन होगा जब ये वापस लाइव होएगा ये एपिसोड, हाँ. उसके बाद हमारा इंटरेक्शन खत्म, राइट? सो आई वांटेड टू just extend our interaction to 6 months where someone on my guest अगर कोई आता है तो मैं उनको जो अपनी मर्ज दूँ वो उनके ऑफिस में, उनके कमरे में, उनका कहीं भी वो रहे और उनके सबकॉन्शियस में वो फिट हो जाए. Oh, that is so. You know, I'll tell you this. I know this कि अगर हमें कभी भी ना किसी के दिमाग में रहना है, मार्केटिंग स्टंट में तो बहुत ज्यादा कॉमन है कि हम कुछ गिफ्ट देते हैं. Exactly. स्पेशली उस पे अपना टाइटल डाल के या कंपनी नेम डाल के, so that the person whenever they see it they get reminded of you. So that is kind of similar to me. ये मार्केटिंग से आ रहा है. And I've seen also a lot of reels of yours where you talk about how a marketing of a particular brand stays with you, or you talk about lifestyle and all. So let's dig into marketing a little more deeper because you've worked with e-commerce brands also. A lot. तो ऐसा क्या लग रहा है आपको कि मिसिंग है या गलत जा रहा है? बिकॉज आपने तो मुझे लगता है बहुत सारे पॉडकास्ट भी करे हैं ना D2C ब्रांड्स के साथ. है मेरी. हाँ, तो मतलब कैसे, क्यों लग रहा है कि हम कोई गलत ट्रैक पे जा रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो मैंने सुना है फेल हो जाते हैं यार. स्टार्ट करते हैं और फेल हो जाते हैं, नीचे ड्रॉप डाउन कर जाते हैं, ग्राफ ऊपर नीचे तो चलता रहता है, समझ आता है, ठीक है, बट एक स्टेबिलिटी लाना कितना इम्पोर्टेंट है. हाउ एनीबॉडी हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट एज अ जेन ज़ी कैन रिलेट टू दीज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स? आई फील दैट आपने एक क्वेश्चन में ना इतने सारे एस्पेक्ट्स टच अपॉन कर दिए है that I'll just start from like the very basics, कि कोई 18 साल का बच्चा, कोई 20 साल का बच्चा भी देख रहा है तो उसको समझ आए. पहले तो I think I should really address the fact that being a founder and a co-founder is such a trend that people just go in it without even realizing कि वो कर क्या रहे हैं. It's very good, no hate for it. It's good that you are doing. It's great. अभी प्लेटफॉर्म है, टाइम है, सबको करना चाहिए. बट इसीलिए मत करो क्योंकि तुम्हें फोमो हो रहा है. आप मतलब तुम्हें करना है, बस ये नहीं बस मैन्युफैक्चरर से लेके टी शर्ट बनवा के छपवा के बेच दी या कुछ भी ऐसा. एक्चुअली ट्राई टू फाइंड अ गैप. और इवन इफ यू डोंट वांट टू फाइंड अ गैप, इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग जो ऑलरेडी मार्केट में है, तो उसको इतना अच्छा बनाओ कि कोई तुम्हें प्रीमियम दे दे, चाहे वो 10 रुपए का क्यों ना हो. लोग प्रोडक्ट में ही नहीं ज्यादा एफर्ट करते हैं. लोग तो आपका प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं ना. ठीक है, एक बार आपकी सॉलिड मार्केटिंग, सॉलिड पैकेजिंग, सब की वजह से तुम्हें एक बार बंदे ने खरीद लिया तुम्हारा, क्या वो दूसरी बार खरीदेगा? नहीं. एंड नो सस्टेनेबल बिजनेस इज बिल्ट ऑन वन टाइम परचेज. हाँ, ट्रू. सो आई थिंक फर्स्ट तो यही है दैट डू एवरीथिंग related to a product. Your product should be bang on. It should have a purpose. बस FOMO के लिए फाउंडर मत बनो. अरे बट इट इज अ ट्रेंड नो कि हम फाउंडर नहीं है. जैसे ना इनिशियल डेज में हम कहते थे ना इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ऐसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे. नाउ दैट्स द न्यू ट्रेंड. एंड आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड. जैसे आपने गैप्स की बात कर दी ना, यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल पे तो समझ आता है. But then let's say somebody who is initially has started off and they have a purpose of the brand and they're like really motivated, but then उसको समझ नहीं आ रहा what kind of marketing campaigns or what kind of stunts maybe they can do, or they can make themselves recognizable or memorable. तो क्या करना चाहिए? See, I would
firstly suggest that go very deep into who you are targeting. Like ये तो basic है marketing का, that if you're targeting everyone, you're not targeting anyone. Yeah. Right? So be very crystal clear with your TG, target or target group. जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपका टारगेट ऑडियंस है 18 to 30, which is a very good target size. 12 साल कम नहीं होते हैं, राइट? सो आप फिर समझो कि अच्छा ये 12 साल का जो मेरा एज ग्रुप है 18 to 30, इनका दिन कैसे शुरू होता है और ये कैसे खत्म करते हैं दिन, वो क्या क्या करते हैं, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, वो क्या क्या खाते हैं, एंड देन ट्राई टू मार्केट योर प्रोडक्ट इनटू देयर लाइफस्टाइल इन दैट फॉर्मेट. एग्जाम्पल, जैसे सपोजली मैं सुबह उठते ही कॉफी पीती हूँ, ठीक है, तो अब क्या मैं अपना प्रोडक्ट किसी कॉफी एसेसरी में इंटीग्रेट कर सकती हूँ? क्या मैं मग इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ? ठीक है, कॉफी हो गया. फिर वो बंदा जिम जाता है, या वो पिलाटीज जाता है, या वो रनिंग पे जाता है, क्या मैं कुछ एथलीजियर में या कुछ किसी उस फॉर्म में इंटीग्रेट कर सकती हूँ? कैन आई डू सिपर्स? और ठीक है, ये हो गया. फिर वो अपने काम पे जाते हैं, उनको स्टेशनरी चाहिए, वो काम पे जाते हैं, ऊबर बुक करते हैं, या वो ऐप बुक करते हैं, या कोई थर्ड पार्टी वो यूज करते हैं, क्या मैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकता हूँ? यू हैव टू रियली फिट इन द DNA ऑफ योर TG कि वो दिन में क्या क्या कर रहे हैं, आप वहाँ प्रेजेंट हो. अब जैसे Starbucks and Odd Giraffe did a collaboration. I loved it so much because उनका TG बिल्कुल सेम है. The very premium people who like to, you know, sit and study and do their work in the cafes. Yeah. And it just connected. अगर कोई लेमैन देखे बोलेगा क्या कोलैबोरेशन है, बट गो डीपर, इट मेक्स सो मच सेंस. या आई टेल यू दिस, यू नो, हम लोग मिस आउट कर देते हैं. अभी रिसेंटली मैगी ने जो बोल निकाला था, बोल तो चलो सबको पता है कि मैगी मेड अ बोल, मैगी ने यूनिक्लो के साथ कोलैबोरेट किया था, एंड दैट वाज लाइक उन्होंने प्रिंस निकाला, एंड आई एम थिंकिंग कि यार एक ब्रांड, मैगी को क्या जरूरत है यार मार्केटिंग की, मतलब हर दूसरा बंदा उसको मैगी पता है, but they still put in so much of effort in doing that, so much of depth, and they're still spending same amount of money on the marketing that they're doing. Yes, and last night I was watching a podcast, तो सबसे पहले मेरे को YouTube पे एडी मैगी का आया था, और मैं भी सेम सोच रही थी, पता है कि इनको क्या जरूरत है. Exactly. But then I was like, हाँ ठीक है, recall. अब मेरे को देख के मैगी मन कर रहा है ना खाने का. Exactly, you know, मैगी रीहिट कर रहा है ना आपके ब्रांड्स पे, आपके टी-शर्ट्स पे कहीं दिख रहा है तो एकदम से याद आ रहा है. अरे that is the reason I just feel like, you know, जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता ना, हमारे दिमाग में मैगी आती है बनाने के लिए, बिकॉज उसने अपनी ब्रांडिंग इस तरीके की कर दी है कि यू नो इट इज इन आवर ब्लड एंड ऑल ऑफ दैट. ऑल्सो बिकॉज नाउ यू हैव टच्ड टारगेट ना, कई बारी ना हम एक वर्ड होता है नीश, उसको लेके बहुत ज्यादा अटक जाते हैं. करेक्ट. अभी ठीक है, टारगेट ऑडियंस समझ आ रहा है बिकॉज इट्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट हैज टू गो टू अ पर्टिकुलर पर्सन, राइट? बट देयर आर पीपल जैसे who want to start but initially बस नीश को लेके इतने ज्यादा confused है that are not even starting. मैं भी उसी में थी. What is your take? Sorry to cut you. No, it's okay. मतलब मेरे को लगता है कि somebody who has been in the same boat ना शायद ज्यादा अच्छा express कर पाएगा. फिर कैसे बाहर निकले? Basically हुआ क्या था? I started my podcast in Jan-Feb last year, and मैंने जुलाई अगस्त तक ना अपना personal content बनाया ही नहीं था. मेरा इंस्टाग्राम प्राइवेट था. सोचो क्यों? बिकॉज मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊँ क्या. आई न्यू दैट आई हैव टू टॉक अबाउट मार्केटिंग एंड ऑल दिस ज्ञान एंड वो सब. मेरे को सारे दुनिया भर के अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट और सब ने आगे बोला था कि ये आपका पॉडकास्टिंग जॉनर है, एंटरप्रेन्योरशिप, यू शुड टॉक अबाउट इट. आप इसी के बारे में बात करो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको यही बात करनी है, आपको यही बात करनी है, आपको यही बात करनी है. और मैं कहा मैं नहीं कर सकती. मुझे नहीं बात करनी यार इसके बारे में. मतलब ठीक है, मेरा चाहे कितना ही इंटरेस्ट हो, आई डोंट वांट टू बी जस्ट दैट. यू नो, आई नो व्हेन आई एम सो मच, तो मैं क्यों बस एक ही जगह पे ना ऐसे क्या बात करूं. एंड बिलीव मी चारू, आई ट्राइड, मैंने करा, आई फेल्ड मिजरेबली. आप मेरे इंस्टाग्राम पे नीचे जाके जाओगे ना, आपको सब मिलेगा वो कंटेंट. 2000-3000 व्यूज, बिल्कुल मतलब बकवास, थर्ड क्लास. मैं बिल्कुल और डीमोटिवेट होती जा रही थी कि यार मेरे को तो इन लोगों ने बोला था ऐसे करना है, मैं कर भी रही हूँ. मैंने क्योंकि अपना दिमाग तो स्विच ऑफ ही कर दिया था ना. मेरे को मैं वो करी थी जो मेरे को बोला गया था और जो मेरे को भी समझ आ रहा था कि हाँ सही कह रहे हैं, मेक सेंस. यू नो कि अगर आपके कोई इस पे लैंड कर रहा है, वो आपकी बातों से इम्प्रेस हो रहा है, तभी तो वो पॉडकास्ट पे जाएगा. और इधर वे कि पॉडकास्ट पे आके फिर पेज पे आ रहा है तो फिर वो फॉलो करेगा.
मैंने करा, मुझसे नहीं हो पा रहा था और बहुत फेक लग रहा था वो। मैंने कहा नहीं हो रहा। फिर मैंने 1 महीना ब्रेक लिया उससे। मैंने कहा भाड़ में जाए व्यूज, अब मैं वो करूंगी जिसमें मुझे मजा आता है। Yeah. So then I started doing my fashion videos, not get ready with me sort of thing, but how I did fashion videos was that I used to show the homegrown brands that I'm wearing, That's or so nice. just some unique things, or like marketing insights, or packaging insights, all related to homegrown brands. मैंने नीश वही रखी अपनी ब्रांड्स की, D2C ब्रांड्स की, बट उसको मैंने अपने DNA में मिक्स कर दिया, and it is blowing up. No, it is who you are. Sometimes Exactly. the logic doesn't work. Exactly. And I'm a very funny person in real life. So मैं वो carousels आप देखोगे मैं वो डालती हूँ बीच बीच में funny वाले, जिनका कोई मेरी audience से लेना नहीं है, but it's just for me. Yeah, it's just who you are. Yeah. No? And you can't fake it. And you know, coming to niches, I was just at a Women's Day talk in March, and उधर भी ये topic उठा Same था. आया, हाँ. Same. कि you know niche का क्या है, niche का क्या है. And I always say कि with the growth of AI, niche is not the biggest thing. Why? Because मैं वो चैट जीपीटी या मैं क्लॉड पे डाल के मेरे को सब कंटेंट मिल जाएगा, बट व्हाट मेक्स मी यूनिक इज नॉट माय नीश, इट्स माय पर्सनालिटी. Yeah. That I, Muskan Goyal, I'm interested in marketing, I'm interested in fashion, I'm interested in memes, I'm interested in design. Yeah. You can't put AI to it. Yeah. So you can be a multi-dimensional person, you can have multiple niches. What ties them all together is how you talk about it, and Yeah. how your unique perspective comes through you. आप अब उसमें 4 अलग नीश के बारे में बात कर सकते हो, पर आपका तरीका, आपका लिंग्विस्टिक फनी तरीका वो आपका है, उससे सब टाई डाउन हो रहा है. It's, you know, one thing that I've learned is it's how you are, you're unique. हमने ना एक recently, I don't remember, शायद reel देखा था, कुछ देखा था मैंने, and somebody was saying we're just becoming the same person. Because Exactly. We're talking about the same things, same way and all of those things. But, you know, you marketing की बंदी, content, designing, and then memes and funny part into it. Yeah. Like it's something crazy which AI cannot do. Exactly. That makes you, no? Exactly. So AI, आप आराम से AI को लिख सकते हो 5 new brands are killing it in social media. But if I do it, I'll do it in my unique way, in my personality, in my experience. Yeah. वो कोई AI नहीं कर सकता. True. So I would really say that niches are overrated, at least with the growth of AI. अपना skill देखो और अपना interest देखो, उस पे कंटेंट बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हें मजा ही नहीं आ रहा बनाने में तो तुम वैसे ही 6 महीने बाद छोड़ दोगे. True. You know, I also feel like कि niches भी ना वक्त के साथ change हो सकते हैं. Like, you know, यार person हो. Yeah. I'll tell you this. We never thought ना कि अभी recently समय जब India got latent वाला case and all of that, we never thought that he'll speak in this way. Yeah. Like it touched so many hearts, Yeah. and it wasn't a niche anymore. You know, Yeah. it was not fun. It was not comedy at Yeah. all. I mean, of course, comedy उसके DNA के अंदर है, तो उसने bits and pieces लगाए उसमें. But then other part of it, it was very emotional. He Yeah. made you cry and laugh at the same Yeah. time. Yeah. But it's the person that you're relating to, Yeah. not Yeah. anybody else. And you know, he has always talked openly about his family, about his Kashmiri genes, yeah. everything. तो वो उसका DNA उसकी पर्सनालिटी में है. You know his parents, you know his family, you Yeah. know his house. Yeah. तो उसने वो आपको पहले ही बैकग्राउंड दिया हुआ है, वो उसी से स्टोरी लिंक करके वो बता रहा है. हाँ, makes sense. So you have to like you know share and bring it. अगर वो सोचता नहीं मेरे को तो बताना ही नहीं ये सब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरी तो नीश बस कॉमेडी है, बकवास करना है, बकचोदी करना है, तो वो तो लाता ही नहीं ना. True, makes He was sense. so honest with who he is, how close his relation is with his mother, with his Yeah. father. उसने वो day 1 से वैसे ही रखा अपना. Like वो लेटेंट पे भी अपने पेरेंट्स के बारे में बात करता था. हाँ. So अगर वो यही सोचता तो नहीं हो पाता ना. वो इमोशनली फिर अभी आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते कि एकदम से कि अपनी मम्मी को ला रहा है. हाँ, exactly. उसको यूज कर रहा है. It will go other way around. Yeah. Also because आपने स्टार्टिंग में ना बहुत लोगों की सुनी and ये कंटेंट भी किया, but then you came to something that you love right now. Yeah. So what is your takeaway and like
क्योंकि सिर्फ नीश तो एनालाइजेशन नहीं होगा, मुझे लगता है जब हम ऐसा कुछ करते हैं ना हमें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, और मे बी वांट टू शेयर इट विद देम कि क्या इंस्टाग्राम एंड ऑल ऑफ दिस की भाषा है, बिकॉज it is changing so much with time. The campaigns are not running anymore. Instagram as such, Instagram is not a trend anymore. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, and there are a lot of myths that I want you to burst out. Can you give me like a context in what genre specific? Specifically, let's say you talk about these brands nowadays, right? You started talking about home brands and all of those things. तो आप बात कर रहे हो कि how the marketing is so cool that you remember, and with respect to time you've realized that this is something that my people are liking, this is something that they're not liking, but this is who I am. So how do you mix all of that? Correct. And somebody who is initially starting and wants to touch base with the audience and then also get brand promotions at the same time, right? Anybody who's doing influencer marketing, right word ये होगा बोलने का कि they want to be influencer. So how does that journey begins or looks like to you? So basically I would say that if you're starting a brand, तो वैसे ही तो budgets होते ही नहीं है in all honesty नहीं होते, ठीक है. And लोग ना क्या कर लेते हैं, बिल्कुल ही हेवी फोटोशूट्स करवा लेंगे, सारा फोटोग्राफर को पैसे दे देंगे. बट इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री विद सो मच ऑफ कल्चर, हेरिटेज, बैकग्राउंड, एंड अभी तो इंडिया का टाइम चल रहा है, रियली फील. एंड इफ यू जस्ट प्लेस लाइक अगर मैं आज ब्रांड निकाल रही हूँ और मैं ड्रेसेस निकाल रही हूँ, लाइक इफ आई एम वेयरिंग दिस, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, मैंने ब्रांड निकाला एंड आई एम सेलिंग दिस काफ्तान. So rather than doing a professional photo shoot, what I'll do is that I'll bring 2-3 of my best friends. I'll say where. I'll bring them in a this is a very Indianized कपड़ा, right? खादी. So इसको मैं बिल्कुल एक Indianized setting में लेके जाऊंगी अपनी friend को, like in a rural village or like a सब्जी ठेला, something like that. And there I'll shoot their reels. I'll shoot their content from phone. DSLR भी नहीं चाहिए मुझे कि तू सब्जी ले, मैं तेरा content बना रही हूँ, because I want कि जो फोन पे बैठा हुआ बच्चा अपने बेड पे बैठ के स्क्रोलिंग कर रहा है, वो ये ड्रेस में अपने आप को इमेजिन कर ले. तो वो तभी तो इमेजिन करेगा ना जब उनकी जैसी लड़की उनके जैसे फेमिलियर सेटिंग में पहन के धूप में खड़े होके कुछ कर रही है. ट्रू, मेक सेंस. सो आप ऐसा कंटेंट बनाओ, यू डोंट हैव टू रियली इन्वेस्ट इन ऑल दीज हाई रेज शूट्स, यू जस्ट हैव टू ब्लेंड इन योर यूजर्स लाइफस्टाइल, यू जस्ट हैव टू टॉक देयर लैंग्वेज. मतलब आप कैप्शंस भी लिख रहे हो या आप रील पे टेक्स्ट भी लिख रहे हो, तो आप करो ना जैसे आप दोस्त से बातें करते हो. वी क्या लगा रखा है, आई यू से बात करो. I always say in the caption that caption में ऐसा होना चाहिए that we know, मतलब like I'm listening to you. Like talk to as you're talking to a friend. Brand आप जितना personal बनाओगे, जितना human बनाओगे, उतना चलेगा आपका brand. It makes sense. मतलब ये तो मुझे ऐसे हिट कर गया है कि आई और यू से हम बात ही नहीं करते. Exactly. वी कौन है वी? मैं किसी की भी लाती हूँ, सोशल मीडिया हैंडल करती हूँ, कंटेंट हैंडल करती हूँ, तो पहले वी हटाओ ये सब. कौन है वी? ये ढूंढ नहीं पा रहे हम वी वाला बंदा. कौन है वी? इससे बात हो रही है. Please. I'm addressing to someone. Yeah, it is one particular person, and they should feel that presence of yours. They should feel special, that it's you who I'm talking to. It's you the right person. Oh my God, this is so nice. And also because you've been into podcasting है ना, तो podcasting की भी तो ऐसे जर्नी रही होगी कि almost completed an year है ना, almost close to 3K and all of that है ना. तो what is your learning? कुछ तो figure out भी किया होगा, और what is something that you really want to burst out कि यार ये मत करो, क्योंकि there are a lot of people who are looking forward for a podcast also है ना. और sitting next to me on the table और ऐसे podcast host दो बैठे हुए हैं, तो ऐसे हम कैसे बात नहीं कर सकते, because there are a lot of things that go in the back of your head कि podcast क्यों करना है, कौन सुनेगा, इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस हैं एंड ऑल ऑफ दैट. ऑल्दो नॉट सेइंग कि पॉडकास्टिंग में लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, बट एवरीवन सेज कि ठीक है उसका टाइम था, जैसे राज शमानी का टाइम था, हो गया उसके लिए, ज़रूरी है तुम्हारे लिए भी हो जाएगा. सो लाइक व्हाट आर योर मिथ्स, व्हाट आर योर हैक्स, व्हाट आर योर टिप्स, व्हाट हैव यू लर्नड और हाउ इट हैज चेंज्ड यू एज अ पर्सन. मतलब ठीक है मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, बट ठीक है वी कैन ब्रेक डाउन एंड वी कैन कम वन ऑन टू एवरीथिंग. आई वुड से कि देखो अगर मन कर रहा है तो ट्राई तो करो, बट आप ये पूछो कि आप करना क्यों चाहते हो. आप राज शमानी बनना चाहते हो तो मत करो.
आप अपने लिए करो. You. You know, like find why do you want to do. Like I had a very personal reason of figuring it out on the journey. मेरे को नहीं पता एंड गोल क्या है और मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं इसको फुल टाइम करूंगी कि नहीं करूंगी. इट्स जस्ट अ साइड भी नहीं बोलूंगी, बट लाइक अ वेरी पैशन पर्सनल प्रोजेक्ट that I'm putting a lot of money on. ये जरूर बोलना था मुस्कान को. ठीक है, I'll not break it down, but ठीक है, let it be like that. So I think it is very personal because अगर आप किसी को देखा देखी में कर दोगे ना, तो वो 6 महीने में आप बंद कर दोगे, because podcasting is a very slow, very caterpillar type of growth वाला thing. हाँ. And you know, आप मानोगे नहीं चारू, in this 1 year का growth, I have came across 3 podcasters जिन्हें बंद कर दिया. मेरे साथ स्टार्ट करा था या मेरे से पहले स्टार्ट करा था, मेरे बाद स्टार्ट करा था, एंड वी कनेक्टेड कि यू नो लेट्स कि एक सजेशन मिल जाता है, यू नो एक थर्ड पर्सन ओपिनियन मिल जाता है, पर्सपेक्टिव मिल जाता है. एंड एक भाई मैंने उनको ये बोला था, देखो ग्रोथ स्लो होगी, एंड ये डे 1 से पता था मुझे, एंड ये है पॉडकास्टिंग में. मैं आपको बताऊं, मेरे तो लोगों में कैटरपिलर है. तो मैंने तो डिसाइड कर रखा कि अब ये धीरे धीरे एकदम ऐसे कुकून से बाहर आएगा, फिर बटरफ्लाई बनेगा. So if you have the patience, then only do it. Yeah. That is the biggest myth. And it is tough, you know. It is People very tough. feel like कि नहीं बहुत आसान है. मतलब not saying कि it is easy also. मतलब it is easy also. It is tough also at the same time. यार किसी को बुलाना, अपनी लाइफ का सब इतने बिजी है, किसी को कन्विंस करना कि आप मेरे को अपने दिन के 3 घंटे दो, क्या इजी है वो? मैं यही कहती हूँ, जिसको इजी लगता है तुम क्रैक करके दिखाओ मुझे. 4-5 गेस्ट पहले बस क्रैक कर दो. आगे का तो मैं कह भी नहीं रही. हाँ, ट्रू. फिर बात करेंगे. हाँ, बिकॉज नहीं होता यार. एंड पहली मिथ तो यही है दैट इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम. देखा देखी में मत करो, पर्सनल रीजन है तभी करो. एंड जो लोग कहते हैं पॉडकास्ट आर डेड, इसमें जूस नहीं बचा, आई रियली फील इट इज नॉट ट्रू. नीश पॉडकास्ट जिसमें आप स्पेसिफिक जॉनर के बारे में बात कर रहे हो, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट स्किल फॉरवर्ड आपका पॉडकास्ट है. आई एम टॉकिंग अबाउट यंग एंटरप्रेन्योर्स. मेरी नीश 18 to 35 है, स्पेसिफिकली इन एंटरप्रेन्योरियल एंड क्रिएटिव वाला वो फील्ड. तो आपका नीश स्पेसिफिक होना चाहिए. जैसे अगर कल को एक पॉडकास्ट है जिस बेस्ड ऑन लॉयर्स, क्या बढ़िया कर रहा है वो पॉडकास्ट, क्योंकि उनकी नी. और इंडिया इतना बड़ा है, लोगों को लगता है हम एक टॉपिक उठाए के चलेगा नहीं. इतना बड़ा देश है हमारा, आप एक टॉपिक उठाओ, उसमें डेप्थ में जाओ, चलेगा ना. अरे बहुत बारी ना, यू नो, आवर पेरेंट्स आल्सो से इट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आप एक चीज करो, कोई रज के करो, इतनी बढ़िया करो कि आपसे बढ़िया कोई ना करे. And you find your own audience, you find your own people, you know, in that. And you know your audience finds you. You don't find your audience. Yeah. मेरे को पता है हमेशा से गलतफहमी थी कि आप अपनी ऑडियंस को ढूंढते हो. No. The They right find people you. will find you. Yeah. कहीं से आ जाओगे ढूंढते फिरते. मैंने ढूंढा ना मुस्कान को, देखो. Exactly. तो ढूंढ लेते हैं यार, अब ढूंढ लेते हैं आपको. आप you do you. Yeah. Be authentic. मतलब be authentic बहुत ऐसे फेंका जाता है वर्ड, but it's true. नहीं, it takes a lot of guts to be yourself, you know. अरे यार मतलब you know I don't know, अभी तक मेरे को नहीं समझ आता कि मेरे अंदर से ये हिम्मत कहाँ से आ गई to be on the camera just like that, because वो एक चीज होती है ना कि ये नहीं हो पाया. Were you कुछ नहीं हो camera पाया. shy? मतलब I was not camera shy, but I was always the person who was behind the camera. Like I used to do creative direction for a lot of shoots. okay. So मैं हमेशा behind the camera रहती थी. मुझे पता था सब कैसे होता है. I've been into multiple studios. मतलब ये मेरा रोज का सेटअप होता था, पर हमेशा behind से. फ्रंट में कभी गई ही नहीं. और आई डोंट यूज टू यू नो से कि मेरी फोटो भी मत खींचना है प्लीज, ये सब मत करो मेरे साथ. oh my god, and ये turn कैसे हुआ? Because I was telling you ना कि मैं बहुत stuck थी. हाँ. 2024 में लाइक कुछ तो करना पड़ेगा. This is like this, ये नहीं हो पाया तो कुछ नहीं हो पाएगा. Growth is very important. पैसे 2 कम कमा लेंगे, पर ग्रोथ होनी चाहिए. पैसों के लिए तो 30s भी है. तो अब कैसा लग रहा है जस्ट बिकॉज सुन के, ना कि मुस्कान गोयल सुन के? आई एम सो अब इतनी परेशान हो गई हूँ ना कि लोग मेरे को, आई वाज एट द AI फेस्ट, आई वाज होस्टिंग देयर फॉर 3 days. तो वहाँ पे मेरे को 2 सब्सक्राइबर्स मिले अपने. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. मतलब मैं तो जस्ट बिकॉज भूल गई थी उन 3 दिन, बिकॉज आई वाज fully focused on the AI fest. कहीं से 2 लड़कियां just because
कहाँ से आ रहे हो तुम? ये मुस्कान को नहीं जानते हैं पर जस्ट बिकॉज को जानते हैं। अरे और पता है मैंने वेट करा, मैंने रिएक्ट नहीं करा, जब उन्होंने मुस्कान बोला ना तब मैंने रिएक्ट करा, मैंने कहा मेरी बात हो रही है। बिकॉज मैं इतने डिसबिलीव में थी कि मेरे को ही बोल रहे हैं, ये मेरे को ही बोल रहे हैं। बट देन आई रियली फील कि अभी तो बहुत ही बिगनिंग है यार, अभी तो मतलब बहुत दूर जाना है। बहुत दूर जाना है। मतलब आई ऑलवेज से कि आई डिडंट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार। या आई नो। एंड फीमेल पॉडकास्टिंग में तो बहुत जूस है। अरे यार मतलब मत पूछो। चारू आप ही बताओ यार, लोग कहते हैं इतना पॉडकास्टिंग डेड हो गया है, बट इफ आई टेल यू टू नेम 10 क्रिएटर्स, नॉट इवन पॉडकास्टर्स, फीमेल क्रिएटर्स, कैन यू नेम देम ऑन नहीं योर मैं टिप्स? नहीं कर पाऊंगी, मैं बता रही हूँ नहीं कर पाऊंगी। कोई है ही नहीं नहीं यार, है, कोई नहीं कोई है। नहीं है। एंड यू नो पॉडकास्टिंग में लोगों को, आपको भी पता है, 1 साल से आप कर रहे हो, मेरे को भी पता है कि हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे, वो वायरल हो जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल टू गेट व्यूज, बट इट्स एक्सट्रीमली हार्ड टू गेट डेप्थ, एक्सट्रीमली हार्ड। मतलब मेरे को अगर 1000 व्यूज आए किसी चटपटी बॉलीवुड बात करके वर्सेस मुझे 100 व्यूज आए जिससे एक्चुअली किसी का भला हुआ, तो आई वुड चूज दैट, क्योंकि मुझे पता है वो एक बंदा जिसका भला हुआ है ना, मेरा लाइफ लॉन्ग कंटेंट देखेगा। या मेक सेंस। बॉलीवुड वाली ऑडियंस आएगी चली जाएगी, उनका सब्सक्राइबर नंबर बढ़ जाएगा, आई डोंट वांट दैट। नो इट इज अगेन नॉट अबाउट द मनी थिंग। Yeah. मतलब घूम फिर के ये सब हो किस ले रहा है पैसे, बट इट शुड मेक सम इम्पैक्ट। और पता है मैं आपको बताऊँ, दिस इज वन थिंग, क्योंकि मेरे साथ बहुत होती है, मैं हर मोमेंट ऐसे सोचती हूँ कि यार बंद कर देती हूँ, यार नहीं चल रहा है, यार बंद ये कर तो देती हूँ, यार हर नहीं दूसरे चल दिन रहा आता है, ये है ना, हर दूसरे दिन ये थॉट आता है। और फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि फिर कोई नया बंदा ना ऐसे कमेंट कर देता है मेरे पॉडकास्ट के नीचे, यू नो दिस चेंज समथिंग इनसाइड मी, आई एम लाइक अरे यार अब अगला भी करना पड़ेगा। What are your worst kind of episodes? I want to अरे know. बाबा मत पूछो। अरे नहीं, मतलब without taking of course any names, like what do you, because मेरे साथ भी ऐसे of course I've done I think 30-40 episodes करे होंगे मैंने roughly अब तक, और सारे नहीं होते अच्छे। थोड़े थोड़े के बाद तो मैं खुद ही ऐसे होती हूँ कि क्यों हो गया। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि यू नो यू स्टार्ट विद समथिंग एल्स, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो पॉडकास्ट में निकल के कुछ है। मतलब आई टेल यू, मेरे वर्स्ट पॉडकास्ट ऐसे होंगे जिनका कोई तुक नहीं है, सिर पैर नहीं है कोई, मतलब आई एम लिटरली एक्सेप्टिंग इट फॉर अ फैक्ट, और मेरी ऑडियंस ने फिर भी उसको इतना प्यार दिया है मैं बता नहीं सकती। मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। बट हम कहीं से शुरू होते हैं, ऊपर नीचे जाते जाते कहीं तक पहुंच जाते हैं, एंड देन समटाइम्स आई फील लाइक अरे यार इसका तो पूरा वर्थ ही नहीं निकला, ऐसे हो जाता है। एंड लाइक आई टेल यू, आई हैव बीन विद अ लॉट ऑफ गेस्ट जिनकी अपनी कोई स्क्रिप्ट बन के आती है उनके दिमाग में, यार मैं ऐसे हो जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, तो आप उनको रोकते हो? रोकना पड़ता है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है यार। उसका मतलब आई कांट गिव समथिंग टू द ऑडियंस जो मतलब बिल्कुल ही लिखा हुआ है कि यार मुझे ये बोलना है, कि इट्स नॉट यू। एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज, आप मानोगे मेरे से, मतलब एनीबडी हु इज डूइंग दिस सिंस लाइक 10 years 20 years आस्क्स मी कि आप मेरे से पूछोगे क्या, मुझे बता दो मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ। यार वही है ना, लोगों ने दिमाग ही मारना बंद कर दिया है। और प्रिपेयर भी पता है वो इंसान कैसे करता है? आपके क्वेश्चंस डालता चैट जीपीटी पे, प्रिपेयर हो जाता। किसी को दिमाग ही नहीं मारना, खराब हो गया दिमाग लोगों का। आप लोगों को कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हो, यू आर डीलिंग विद पीपल लाइक दैट, क्या कुछ स्क्रिप्टेड पढ़ा रहे हो लोगों को? मतलब आई एम, अच्छा व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू कि आप कम्युनिकेट करना कैसे सिखाते हो, व्हाट डू यू टेल पीपल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड मैं ऐसे हो जाती हूँ, मैंने कहा नहीं मुझे करना ही नहीं है, आप मैंने जोड़े हाथ, मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री टू से नो और टू स्टॉप पीपल एट द राइट टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट। यू वोंट बिलीव, अगर मेरे को 100 रिक्वेस्ट आई होगी तो मैंने उसमें से बस 6 को हाँ बोला होगा। ऐसे ही होता है। 6 भी नहीं, मतलब बिकॉज मैं ज्यादा रीच आउट करती हूँ, आउटरीच वालों में से मैं कम मानती हूँ कि I'll pick you। हाँ, मतलब इट शुड बी मी हू डिसाइड्स कि आप मेरी ऑडियंस के साथ, यू नो इट इज लाइक आपको पता है कि यार आपके पास 18 से 25 साल की ऑडियंस है जिसको ये देखना है, वो ढूंढ रही है ये चीज कि यू नो समबडी दे कैन रिलाई ऑन। एक तो मैंने खुद ही देखा है कि आप ऐसे स्कैनर लेके घूमते हो, ठीक है, और लगा देते हो, चिपका देते हो जगह जगह पे, कहते हैं जस्ट बिकॉज वाला है ना। मुझे ये बताओ आपने और कितनी कूल चीजें करी है अपने पॉडकास्ट के लिए, मेरे को सारी जाननी है यार। सो आई हैव दिस QR कोड वाला स्कैनर जिस पे इट लीड्स टू माय यूट्यूब चैनल, एंड उस पे नीचे टेक्स्ट लिखा है स्कैन फॉर 5 years of good luck, बिकॉज आवर इंडियंस आर
गुड लक के चक्कर में वो कुछ भी करते हैं डर के यार। चक्कर में, लक के चक्कर में, भगवान के चक्कर में वो कुछ भी कर सकते हाँ, हैं। true. So I was like ठीक है, इस पे करते हैं, इस पे फायदा This is उठाते हैं। crazy man. मतलब wherever she goes she pays that। मतलब मेरे को अरुण फोन देना इनका यार, इसके पीछे है ना नहीं अभी नहीं यार, because I had that चिपकू ना पीछे, तो उसके चक्कर में मैं 2-3 चिपकू खराब कर चुकी हूँ यार। But- मतलब हर जगह जाके पेश कर देते हो यार। So I've pasted a few in Khan Market, हाँ। I've pasted a few in CP, अरे बाप रे I've बाप। pasted a few in वसंत विहार मार्केट, और एक तो सिनेमा हॉल के पीछे भी करा था मैंने सीट पे। वो जो इनिशियल मतलब मेरे को ना ये भी मिथ ब्रेक करना है, क्योंकि आप बैठे हो मेरे साथ और मोनेटाइजेशन का बड़ा दिक्कत है यूट्यूब के साथ। लोगों को अरे लगता है वाह, खेल है, कुछ खेल मतलब नहीं है। 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद जो ये 4000 वॉच आवर्स करने होते हैं ना, इसमें नानी याद आ जाती है। मतलब मेरे को तो you know, luckily it was I crossed the watch hours before. सच्ची Yeah. नहीं यार, नहीं, मेरे साथ तो एकदम ऑपोजिट था। पहले सब्सक्राइबर्स हुए फिर वॉच आवर्स हुए। मेरा वॉच आवर्स थे हुए 1 महीने के गैप में ही थे, ठीक है। बट लाइक फर्स्ट आई टच्ड द 4000 वॉच आवर्स एंड देन आई वाज लाइक सब्सक्राइबर्स तो हो जाए। तब ये मतलब मेरे को लगता है तब आया होगा ये कि हम सब्सक्राइबर्स चाहिए, हम स्कैन कर देते हैं। मैंने कहा सब्सक्राइबर्स आने के लिए कैसे लाए छपाओ। Oh my God, this is so yeah. nice. अच्छा, और सजेस्ट करो क्या कर सकते हैं मतलब अपने पॉडकास्ट के लिए। अपने पॉडकास्ट के लिए यार आई वुड से यू आर योर बिगेस्ट मार्केटिंग अरे पर्सन, यार। बिकॉज इफ यू वांट प्रमोटेड शेमलेसली देन नो वन एल्स विल। तो मैं तो हर जगह जाके, मतलब टचवुड आई हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, वो हर जगह जाके, जैसे हम एक बार सब कसौली जा रहे थे, तो वी स्टॉप्ड बीच बीच में वो ढाबों पे, पनवाड़ियों पे, मेरे फ्रेंड्स ने सबसे रुक के उनसे सब्सक्राइब करवाया है, सबसे, पूरे ढाबे के स्टाफ ने मेरा पेज चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है। अरे आई रेड दिस आल्सो, आई थिंक मैंने लिंक्डइन, पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था कि आप एप्पल स्टोर गए थे, आपने वहाँ पे भी ऐसे कुछ कर दिया। सो आई स्टार्टेड द पॉडकास्ट, आई टोल्ड माय फ्रेंड्स, सबको पता था, कहता चल, माय फ्रेंड केम आउटसाइड माय हाउस, गाड़ी में बैठ, मैंने कहा क्या कहा जा रहे हैं, कह रहे बस चल चल चल, मैंने कहा चल ठीक है। देन वी वेंट ऑन द एप्पल स्टोर और उधर 2-3 लैपटॉप्स थे, हमने सबसे सब्सक्राइब करा, अकाउंट एक था जो बाद में पता लगा एक, बट व्हाटएवर, इट वाज सो फन, इट वाज जस्ट दैट your friends are there for you. Yeah, I was just coming to that कि you know having right friends who hype you up, it's And very important. I posted a reel about this saying, you know, that the unhinged things I did for my podcasting, उसमें सारी चीजें प्लस 2-3 चीजें और मैंने मेंशन करी थी। So उसमें ना सब यही कमेंट कर रहे थे, how to find those friends, how to find those friends, how to find those friends, and मेरा कमेंट था, first you have to be that friend. Oh my goodness, एकदम ऐसे क्यों तोड़ा आपने हमें? Because ये रियलिटी है ही नहीं, लोगों को रियलिटी चेक ही नहीं है। हाँ। सब एक्सपेक्ट कर लेंगे, पर कभी शीशा देखा है तुमने? फर्स्ट लुक विद इन yourself, फर्स्ट लुक विद इन योरसेल्फ, तभी कुछ हो पाएगा। सो अनहिंज थिंग्स, तो यार यही है कि मतलब ये करा था मैंने इन दिस हैम्पर ऑल्सो, लाइक इफ यू द पॉकेट बुक इज रैप्ड ऑन अ बटर पेपर, और बटर पेपर के ऊपर हमने स्टिकर लगाया हुआ है, सो दैट बिफोर यू tear the butter paper to open the book, you scan it. So, मैं दिखा देती हूँ अब, क्योंकि आपने बात कर ही दिया तो let's pick it up. Yeah, let's This is add the some cool visuals. part that we got from Muskan. Yeah. This is just because exclusive, guys. It's not for sale. It's only for the people. Muskan loves. Yeah. ऐसा ले लेते हैं. But this is really cool. Like इस पे सब कुछ, like she has done it by herself. Yeah. And ये तो खैर सभी guess कर लेंगे, but ठीक है, बाकी लोगों सबको Yeah. guess करने के किसके. If someone guesses all the videos, then Charu will give them a gift. चलो डन, मुस्कान का मर्च नहीं दूंगी, पर ठीक है, गिफ्ट दे दूंगी मैं, वो चलेगा मुझे। You send me their address, I'll send them. नहीं, not for sale purposes, guys. Only Muskan lovers will get that. Yeah. Also, because we've talked about, you know, how to find those friends, and you just hit it the right spot where you said you have to be that friend. So I would just like to add this one thing, you know, हम कितनी बार अपना कोई फ्रेंड या उसका कोई स्मॉल बिजनेस प्रमोट करते हैं? Exactly. नहीं करते यार, और ये अभी रोड ने लिप ऑयल निकाल दिया है नया, तो उसकी सब स्टोरी डाल देंगे, मतलब एवरीथिंग दे अगेन प्रमोट समथिंग ऑफ अ सेलिब्रिटी जिसको नहीं चाहिए वो सब जो आप उसे दे रहे हो. योर फ्रेंड हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू हैज डन समथिंग. हाउ मेनी टाइम्स डू वी ट्राई टू प्रमोट देम? yeah. नॉट इवन वंस. आई मीन आई डोंट फील लाइक कि हमें लगता भी है कि हमारी एक स्टोरी से उसको फर्क पड़ेगा, बट इट रियली इम्पैक्ट्स. You know, पहले होता था जब ऐसे फ्रेंड्स मेरे कुछ लॉन्च करते थे ना, तो आई ऑल्सो यूज टू एक्सेप्ट लाइक बीइंग
faulty first. I used to expect कि मेरे को देना, ये free में देना, सब भिजवाना मेरे घर. हाँ. बट जब से मैंने खुद से चालू करा है ना ये, Realize मैं होता है. उनकी वेबसाइट पे सबसे पहले खुद ऑर्डर करती हूँ True. कि यार वो जो शॉपिफाई की खचंग जाएगी ना उसके फोन पे, उससे मेरे इतना नाम खुश से, होगा, हाँ. इतना खुश होगा वो इंसान. True, क्योंकि true. उनको बस ऑर्डर्स चाहिए, उनको बस एक सपोर्ट चाहिए. Support चाहिए, एंड प्लीज डोंट एक्सपेक्ट फ्री स्टफ फ्रॉम योर फ्रेंड्स इफ दे हैव बिजनेस. ऑर्डर कर दो. दिस इज लाइक द बेयर मिनिमम. Yeah, that you can do. If you call That you them can a do. friend, you know. या मतलब फिर मत बोलो friend. Exactly. If you can't do that for them. मतलब तुम किसी को गिफ्ट कर रहे हो, हैव स्टॉक ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन योर हाउस, सेंड इट टू एवरीवन. Yeah. मतलब इट्स बेयर मिनिमम इफ यू ट्रूली कॉल देम योर फ्रेंड. Friend. Yeah. मतलब फ्रेंड ठीक है, मतलब वैसे तो लाइफ में 2-3 फ्रेंड्स ही होते हैं, बट लोगों को लगता है ना 15-20 फ्रेंड्स है वो है, तो सबके लिए नहीं होता. जो 2-3 क्लोज है सब उन्हीं के लिए हो पाता है. और वही करते हैं यार Yeah. वो एफर्ट. मतलब Yeah. those people were very special for you. They only do या it. दे ओनली डू इट. चलो, now that we have come to this sum up thing, और हमने ना एक बहुत छोटी सी बात करी थी कि what is the worst kind of podcasters that we have. एक क्लिप थी जो मुझे आपकी बहुत पसंद आई थी, where she asked about what is the worst piece of advice जो आपको मिली है. दिस इज आवर स्टेपल क्वेश्चन. Really? So, in the end of every podcast, हाँ. I ask every guest, हाँ. what is the worst piece of advice you have ever received? Because हम इंडिया में ज्ञान तो हर नुक्कड़ पे मिलता है, True. राइट, बट उसको नेविगेट करना कि क्या ये सही ज्ञान है, क्या ये गलत ज्ञान है, दैट आई वांटेड टू केटर टू. My सो मैं हर गेस्ट का वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस पूछती हूँ, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल. इतने फनी निकलते हैं. एक ने आके बोला था दैट सब किसी का एडवाइस मत लो, मतलब डोंट लिसन टू एडवाइस, True. यू नो. एंड एक एडवाइस किसी ने मुझे आके बोला था दैट टू मच एडवाइस इज द वर्स्ट एडवाइस. Yeah. वही वाली बात कि एक का परफ्यूम ब्रांड था, किसी ने एंड आई आस्क्ड हर, शी सेड द वर्स्ट एडवाइस दैट आई रिसीव्ड वाज डोंट लॉन्च परफ्यूम्स फॉर फीमेल्स. एंड उनकी अब ऑडियंस 70% फीमेल्स है. कुछ भी बोलते हैं यार, कुछ भी वही ना. बोलते So हैं. the viewer who is sitting on their bed watching the podcast, they should also realize that, you know, not every advice is a good It's a advice. good advice. Yeah. You should use your brain at the end of the day. वो तो उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहती. मतलब मुझे लगता है वो मेरे लिए एक डिफरेंट टॉपिक है कि व्हाई आर वी एक्चुअली नॉट यूजिंग आवर ब्रेन्स, व्हाई आर वी बिकमिंग रोबोट्स, वी जस्ट फंक्शनिंग लाइक फॉर जस्ट फंक्शनिंग पर्पसेस, नथिंग एल्स. ऑल्सो आपने वर्स्ट पीस, जब मुझे वर्स्ट एडवाइस की जब हम बात कर रहे हैं ना, आप मुझे ऐसा पर्सन लगता है कि जिस बंदे ने वो चीज़ कभी करी नहीं है ना, उससे तो बिल्कुल ही ही नहीं लेना चाहिए. उनका स्टैंड क्या है बोलने का? ये हाँ, मतलब somebody who has just seen it like this, वो कैसे आपको बता सकता है कि उस चीज़ में कुछ है भी या नहीं. मतलब one thing that I would like to come back is, जब आपके साथ पॉडकास्ट पे जो बंदा बैठा है वो आके ये बोल सकता है कि पॉडकास्ट में कुछ नहीं, और फिर भी वो एक पॉडकास्ट कर सकता है, तो लोग कुछ भी बोलते हैं for just content, exactly, for just being cool. Yeah. For his own reel. Yeah. उनको अपना रील काट के बोलना होगा. Exactly. मतलब this makes complete sense to me. मतलब and you have to identify the crux of why सामने वाला इस person is saying it. मतलब जब आप लोग ना why नहीं question करते, मतलब ठीक है, like ये मेरा design thinking है जो बोल रहा है ये, but like I have learned to question whys of everything. Like even if अगर ये chair है, मतलब ये table है, हाँ. तो इस पे white marble क्यों है, black क्यों नहीं है? It is so important. It is so important to ask the whys. Yeah. You know कि अगर ये brown है तो brown couch उन्होंने कुछ सोच के लिया है कि setup में क्यों है. हाँ. Everything has a why, and if you just question the whys, you will get so much of ज्ञान ऐसे बैठे. Maybe this is coming from your designing का background ना, कि कोई color क्यों है किसी चीज का, है ना? इधर dot है तो इधर dot क्यों है? But it is so important in life. It is so important. We don't question. मतलब मेरे को पता है, I am very fond of this why not. मतलब I am not sure. मतलब people do ask why, but I just ask why not. क्योंकि why the hell not? हाँ exactly. मतलब बहुत allegations, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, मैंने कहा क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना. मतलब मुझे कभी भी लगता है मैं टाटू बनवा लूँ अपने यहाँ पे कि why not. मतलब there's no point of even asking कि मुझे ये क्यों करना है, ये मेरा मन है इसीलिए मुझे करना है, that's it. मतलब it is such an important reason to do anything. Yeah 100%. And मतलब the day I started questioning everything, मेरे को इतने insights मिलते थे in my daily life, in my clients वाला life, in my just
नॉर्मल लाइफ. हाँ हाँ. मतलब जैसे आई वाज वर्किंग विद अ परफ्यूम क्लाइंट एंड उनका पहले सारा एक ही कलर का परफ्यूम होता था. ठीक है. फिर एक बार हम बैठे हुए थे और हमें दूसरा परफ्यूम देखे थे. इट वाज अलग मल्टीपल कलर्स की कलेक्शन थी. ठीक रेड, है. पिंक, ब्लू, येलो, ग्रीन. मैंने कहा कलर्स क्यों है? हाँ. और अगर कलर्स है तो रेड क्यों है, येलो क्यों है, ब्लू क्यों है? देन वी वेंट इन दैट रैबिट होल और हमें समझ आया कि ये कलर्स इंडिया में चलते हैं. दीज आर कलर्स दैट वांट यू टू बाय. ये तो पता ही नहीं था मुझे. या जैसे रेड एंड येलो मैकडॉनल्ड्स में है. हाँ. इट इंक्रीज योर एपेटाइट. बर्गर किंग में भी रेड एंड येलो है. ऑल दीज फास्ट फूड चेन्स हैव रेड एंड येलो. अगर आप स्टारबक्स में जाओगे वहाँ पे सारे डार्क मतलब कंफर्टिंग कलर्स है लाइक ब्राउन वेयर यू वांट टू सिट मोर. अगर आप बैठोगे तो आप ज्यादा कॉफी ऑर्डर करोगे. सो एवरीथिंग हैज अ रीजन. There's so much of psychology also Exactly. behind There's it. so much of psychology And we used in miss it out. everything. Yeah. मतलब वो स्टारबक्स के जो कप्स ही होते हैं स्मॉल मीडियम लार्ज, वो वेंटी का जो उन्होंने अलग फ्रेंच में वो करे हुए हैं. इट्स नॉट फॉर एस्थेटिक पर्पसेस. Yeah. उनका लार्ज उन्होंने जान के स्मॉल करा है. It's all psychology. Yeah. You actually have to ask the why. Also, what is your worst piece of advice then? What is the worst piece of advice that I received? Yeah. There are many. मतलब मैं चाह रही हूँ कि मुस्कान जब हर उसमें इधर बैठी होती है ना अपने रील्स में कि you know what is your, इस बार मुस्कान उधर बैठ के जवाब दे. So actually I received it from my sibling. वो जो मैं उनको बोल चुकी हूँ, आपने बहुत घटिया एडवाइस दिया था मुझे. बट ठीक है जो भी है. It was मैं कोई भी होता तो वही देता. It was like open an agency. और आपको क्यों लगता है कि ये उस टाइम आपके लिए worst advice थी? Because I can still open an agency today. I have all the means, I have all the clients. मैं उनको overcharge ही कर सकती हूँ agency खोल के. But it was just that I have worked with agencies for so long that I knew exactly the गंदी हरकतें they did, and it just kills creativity. Then you're working for a machine. मेरे को वो मैं चाहे 3 क्लाइंट उठाऊँ पर मैं उनका ऐसा बढ़िया काम करूँगी कि मैं उसमें खुश हूँ. मैं वो जैसी एजेंसी का टैग आ जाता है ना, एक प्रेशर आ जाता है, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ. एजेंसी नहीं करनी एंड बिकॉज आई न्यू दैट मैं किसी की सुन नहीं सकती. एंड एजेंसीज एंड फ्रीलांसिंग इज just a different version of 9 to 5. आप बोलो मानो ना मानो बट it is. जो लोग कहते हैं हम फ्रीलांसर्स हैं बहुत फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं. एक क्लाइंट का कॉल आता है सबकी फट जाती है. So it's true. Bursting out myths like It's true. You know, also there's one thing because you've said about agencies. I just want to ask you this. Maybe we as Gen Zs, मतलब मुझे personally ऐसा लगता है कि हम शायद systems के लिए नहीं बने. What is your take on that? हम एज इन हाँ मतलब यू नो लाइक ठीक है सिस्टम वर्क करता है नो डाउट. आई हैव सीन लाइक रियली गुड रिजल्ट्स व्हेन इट कम्स टू सिस्टम्स की चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज हो गई एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में चलती जा रही. बट पीपल लाइक अस हु लाइक आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर चेंज फॉर समथिंग दैट एक्साइट्स देम, समथिंग विच इज न्यू क्रेजी, उनके लिए ना लगता है कि सिस्टम एक केज है. डू यू आल्सो फील लाइक दैट? या 100%. मतलब दैट्स द ओनली रीजन आई डिड नॉट वांट टू स्टार्ट एन एजेंसी. मुझे पता था कि मैं नहीं सुन सकती और जो मैं बोलूंगी इनको समझ ही नहीं आने वाला. बहुत बारी होता है यार ऐसा. इट वुड बी लाइक टॉकिंग टू अ वॉल एंड आई कांट यू नो आई वुड अर्न लेस but to do something that I'm not happy with. So it was just not about money. मेरे को पता है मैं बहुत एक लंबा रास्ता चूज कर लिया अपने लिए, but it will happen. And you have to say no to things. And वो तभी होगा when you know believe कि आप कर सकते हो. तो बहुत बारी जब ऐसा होता है कि you know when you're talking to somebody and they don't get you right, sometimes तो we know कि ये नहीं समझ पाएंगे, but sometimes isn't it a question on like ourselves? कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि यार maybe we are going wrong? ना ये तो ओके. ये बताओ कि कैसे कर लेते हो आप ये, क्योंकि ये मुझे लगता है कि मेरे साथ तो बहुत है और आई बिलीव कि हमारे साथ मतलब हमारी ऑडियंस के साथ भी काफ़ी होता होगा कि यू नो एनीबडी एनी टाइम समबडी सेज अस कि नहीं यार ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे नहीं कर सकते, या यू सेइंग दिस. और क्योंकि ना आई हैव अ लॉट ऑफ ऑडियंस जो एक्चुअली कॉर्पोरेट में भी है एंड यू नो फॉर देम देयर bread butter is coming from a corporate, so they have to listen something or the other which is the other person saying, but then how do you make peace with it कि नहीं whatever I'm देखो saying. जब सुनने होते हैं तो सुनना ही पड़ता है. हाँ वो तो है, I agree. But
if you have a larger picture in mind, you know, to do something of your own or to have, मतलब या तो तुम फिर कॉर्पोरेट में कर लो, सुन के निचोड़ दो, निकाल दो, मतलब कॉर्पोरेट की तो लैंग्वेज फिर हो ही जाती है ना टाइम पे, लाइक you have to listen, you don't have any other option. But if you are coming from the school of thought कि corporate is just for this time, मुझे करना तो कुछ अपना है, then you know start building from tonight. मतलब ऑफिस से आके 6 बजे आए, अपना करो जो भी है, 10 बजे बैठ जाओ काम करने. बड़ा मुश्किल काम बोल दिया आपने, बस ऐसे यार ही बट करना पड़ता है, ऐसे ही हो पाता है. मतलब आई स्टार्टेड just because like this, and so many of my friends and other people I know who are like so much successful than us, who have like 100K YouTube subscribers, सब यही कहते थे कि हमने अपनी जॉब नहीं छोड़ी थी जब तक स्टेबल नहीं हुए थे. हम 2-3 घंटे सो के ऑफिस जाते थे, क्योंकि हमें पता था कि बैंक बैलेंस अभी वो आ रहा है वहां से, पर हमने 2-2 साल जॉब नहीं छोड़ी, क्योंकि स्टेबल रखना था. जॉब होता था पैसा, बस वो चाहिए. बॉस बोल रहा है, मैनेजर बोल रहा है, सुन लो, हटाओ. एक्साइटमेंट यही होती थी कि घर जाके काम करेंगे. अरे यार ट्रू इट इज, यू नो आई फील लाइक एवरी टाइम आई कम टू माय सेट्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं किसी ऐसी चीज के पास आ गई हूँ जो मैं मुझसे रिलेटेबल है ऐसे. नाउ बिकॉज I know we can have a lot of conversations more, but I really want to wrap this up on this note कि because initially जैसे आपके बहुत सारे friends हैं या आप भी होगे same picture में where somebody wants to start, you know, what is your piece of advice or what is your take? Anybody who wants to, like, they know it that they want to do something of their own, something big, something that like the way you have it in you ना कि ठीक है लंबा रास्ता है पर हो जाएगा, right? So they want to have that confidence from you. How do you do that? I would say just start consuming better content. Don't मैंने कह रही delete Instagram, नहीं हो सकता, impossible. But like stop scrolling, stop doom scrolling, start reading books, start consuming better content, start sitting in better circles, because जब आप उनसे सीखोगे तो आपको realize होगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और आप कितना कुछ कर सकते हो, और ये रूल्स कुछ नहीं है, लिमिटेशंस हैं, ये कुछ नहीं है रूल्स. अगर आप सोचोगे चारू क्या है रूल, कुछ नहीं है रूल. और ये तभी होता है जब आप एक्चुअली अपने आप को एक्सपोज करो उन चीजों से. जब आप देखो, पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, क्या क्या करा है लोगों ने, मतलब कितना कुछ हो रहा है यार दुनिया में. मतलब मैं तो शॉक हो जाती हूँ. क्यों? बिकॉज आई शट माई इंस्टाग्राम, आई शट माई फोन एंड आई जस्ट like indulge myself in quality content or sitting with quality people, or you know just saying no to parties or like stupid dinners where I can just sit and read a book. So you really have to first work on yourself. I would say कि करना सबको है आज की डेट में अपना कुछ, you know, but वो ऐसे ही नहीं होता. You have to like really put in the time to work on yourself. अपनी mental capacity बढ़ानी पड़ती है, अपनी EQ बढ़ानी पड़ती है, अपने people skills बढ़ाने पड़ते हैं. चारू, you won't believe, जो मेरे first 10 podcast के guests थे वो सारे मेरे clients थे. या जब मैंने अपने clients को बताया भी कि you know I'm starting my podcast and I want to quit your work, ऐसा कोई नहीं जो सड़ा था, because they were so happy कि तूने हमें इतना support करा है, इतना अच्छा relation है, that we want you to see you growing. So relationship building is so important. I always say कि तुम्हें 10 साल बाद वही लोग काम आएंगे जिनसे तुमने वो 9 साल रिलेशनशिप बिल्डिंग करी है. क्योंकि रिलेशनशिप बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं, ब्रेक ऐसे हो जाता है. So you have to like पहले work on yourself. पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आपकी नीड्स पूरी नहीं होती तब तक मुझे लगता है पैसा बहुत मायने रखता है. बट वंस द नीड्स आर फुलफिल्ड, लाइक द वे अनुष्का सेज इट ना, कि मैं चाहती हूँ कि आपके पास भी इतना पैसा आए कि आपको समझ आए कि ये लाइफ का एक्चुअली असली पर्पस नहीं है. It is not everything, and you really have to build in so much of patience, so much of strength, so much of you know your अंदर वाली कैपेसिटी की, like talking in our industry कि 6 वीडियो फ्लॉप हुई तो भी 7वीं करने की हिम्मत है. ये नहीं कि तुम फ्लॉप बिल्कुल बैठ जाओ. वो क्यों है 7वीं करने की हिम्मत? क्योंकि अपने आप पे काम करा है. आप बिल्कुल एवी मतलब ऐसे ही नहीं कर सकते कुछ भी. हाँ, मतलब जितने लोगों ने आपके नून में भी पॉडकास्टिंग बंद किया या जो लोग करते भी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बस एक हीट ऑफ द मोमेंट में हमने शुरू कर दिया और फिर बंद हो गया ऐसे. मतलब जब हम एक बड़ा पर्पस या एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चलते हैं ना, मतलब एवरी टाइम आई हैव दिस एवरी मंथ कि मुझे बंद करना है,
कुछ ना कुछ आउट ऑफ नोवेयर गिव्स मी दिस रीजन कि यार ये नहीं हो पाएगा ना फिर या एंड यू अगर नो छोड़ दिया तो। जब एक चीज गोल अचीव हो जाता है हाँ. तो फिर लगता है अरे नेक्स्ट क्या है. हाँ You know, like when I touched the 1,000 subscribers वाला था, उस दिन मैं sad थी इतनी. है सच्ची कि बहुत sad it थी is so मैं. much relatable finally someone said it on my face I don't know why I can't decode it अभी भी कि मैं क्यों sad थी, but I was so sad that day. I know it's like you don't know now where to go हाँ, कोई गोल ही नहीं है और हम वो गोल चेस करने की इतनी आदत हो गई है दिमाग को कि अब नेक्स्ट क्या. हाँ. और फिर अब वो बिल्कुल ही अब नेक्स्ट अनअचीवेबल गोल दिमाग में डाल देंगे, फिर वो अचीव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्या. इट्स टॉक्सिक आई नो बट इट जस्ट समथिंग दैट कीप्स अस गोइंग एंड इट कीप्स अस गोइंग बिकॉज यू हैव अ लॉन्गर विजन. या मतलब ये तो पता था कि ये हो जाएगा फिर उस हाँ. टाइम मुझे ये फील आता है कि ये तो पता था ये तो हो जाएगा, ये तो पता था ये तो मिलना. एंड आई टेल यू दिस मैंने ना बहुत बारी देखा है, बहुत लोगों को देखा है ये बोलते हुए कि यू नो व्हेन आई हिट दिस नंबर ऑफ फॉलोअर्स दिस एंड दैट Yeah. ये वो ना वो बस कुछ टाइम की फीलिंग होती अरे है यार कुछ नहीं होता, और चली मतलब जाती है. कुछ नहीं होता. आई hosted Chetan Goyal on my podcast. Really? Oh my God. I wanted to host him since months. और फिर जब वो आया उनने करा, अमेजिंग गाय, लवली पर्सन. द एंड थिंग इज हम ना ये जैसे हम आपका वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस हाँ है जी, हाँ हम जी. लोग रैपिड फायर खेलते हैं ठीक है. Ooh. सो आई रियली वांट आई टू एम नो वेरी अनफिल्टर्ड पर्सन चारू, आपके रिस्क पे है ये. पहली मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है. नो डाउट्स मतलब मुझे लगता है कि ये पहली ऐसी कॉन्वर्सेशन है जहां मैं एक्चुअली एकदम खुला होकर कुछ भी पूछ Please, सकती हूँ. please. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर गो टू सॉन्ग? गो टू सॉन्ग हनुमान चालीसा. ओए बाबा बाय गॉड ये लड़की इतनी रिलेटेबल क्यों है? यू नो आई जस्ट फील लाइक ऑल द टाइम जो भी मेरे अंदर चल रहा होता है ना बस एक चीज से शांत हो सकता है वो यही है. Yeah. It's working for me all the time. It Yeah. doesn't. It's not just for Tuesdays. Yeah. It's meant for every day. It's meant for every day. And what is your ongoing book right now? I'm reading that Ogilvy's biography, Ogilvy and Matchell. It's on advertising. Okay. And what is? So उस पे ही है, but that is one I'm reading right now. But there's one book that I read every year Okay. since the past 4 years. It's called The Almanac by Naval Ravikant. Okay. It's my favorite book. उसमें life की philosophies है on how you should just live life. But every year, like it gives Because you I something. want to fit that thing in my subconscious. And when I was reading that book last year, हाँ. अक्टूबर नवंबर में पढ़ी थी मैं, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने पॉडकास्टिंग उसी कई बुक से शुरू करा था. बिकॉज उस बुक में एक लाइन थी दैट देयर आर ओनली 3 थिंग्स इन लाइफ दैट कैन गिव यू asymmetrical returns. Okay. दैट इज रियल एस्टेट, स्टॉक्स एंड कंटेंट. वो मेरे दिमाग में कहीं ना वो लाइन कहीं फिट हो गई थी, पता नहीं कहाँ फिट हो गई थी कि आपको वो सौदे सौदे पे पैसे देगी ये तीनों चीजें. नहीं, content is the game, no doubt. मतलब as a podcaster और as somebody who has been on YouTube and Instagram, मैं तो सबको suggest करूँगी you should have something of your Yeah. own. मतलब content एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता यार. Yeah. वो आप हो, मतलब whatever you speak. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, द ब्यूटी, जो मेरे को लोग कहते हैं ना हम रीलें नहीं बना सकते, मैं कहती हूँ लिंक्डइन कर लो. लिंक्डइन नहीं कर सकते, सबस्टैक कर लो. सबस्टैक नहीं कर सकते, रेडिट कर लो, पर एक्सक्यूजेस मत दो. हाँ true. That is यार ChatGPT का जमाना है. आप कभी कभी अपना प्रोसेस नहीं कर पाते ना इमोशन, आप फिर भी उसको देख के समझ सकते हो यार कि क्या चल रहा है. Exactly. आप कैसे बोल सकते हो कि आप कंटेंट नहीं बना सकते? मतलब जिसको करना होता है वो कर लेता है, वो अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ लेता है. True. मैं मान रही हूँ रील सबकी बस की बात नहीं है, 100% एग्री, बट देयर आर सो मच अदर प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन एक्सप्लोर. एंड ऑल्सो पता नहीं आई थिंक आई मिस्ड इट. हाँ पता है आप क्योंकि आपको बुक्स पसंद है एंड आई वाज लाइक हम आए थे तो भी आप बुक ही उठा के पढ़ रहे थे. सो आई वाज थिंकिंग ऑफ गिविंग यू दिस राज शमानी का बुक डोंट बिल्ड एंड टॉक वाला. आई डोंट नो इफ यू हैव रेड इट और नॉट. आई हैव नॉट रेड इट. ओह शिट वी कुड डू इट. पता है पर आपके ना उस पे आई हैव सीन इट ऑन योर स्टोरीज कि आपने अंकुर वारिको की बुक्स ले रखी थी, डू एपिक शिट. तो Yeah. मैंने कहा यार जब वहां तक पहुंची गई हैं तो आगे भी पहुंच गई होंगी. तो मैंने शिट वी मिस्ड इट. इट इज No. सच अ गुड बुक ऑफ Really? राज शमानी. मतलब Really? आई रियली रिलेट टू एवरीथिंग दैट ही सेज दो. मतलब Yeah. टच वुड Yeah. को मतलब द काइंड ऑफ पोस्ट ही डज, द काइंड ऑफ माइंडसेट ही हैज, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बहुत छोटा सा सेक्शन आई डू अलाइन विद हिम. ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू बिकम हिम एट ऑल, बट ठीक है मतलब ह्यूज कुडोज टू व्हाटएवर ही इज डूइंग. कमिंग बैक टू द रैपिड फायर थिंग, व्हाट इज योर गो टू फूड? गो टू फूड, पानी पूरी, अरे एनी यार, डे. गोलगप्पे. सड़क पे खड़े होके गोलगप्पे खाने में जो मजा है वो कहाँ 5 स्टार होटल की दाल मखनी खाने में है. All right, what is your favorite brand so far? Like it has hit you in a way that it is not going from your mind. Tough.
because there's so much content and brands I consume. I would say it is Gully Labs, the shoe brand. हाँ. I really love how they're doing everything. Oh. This is me manifesting a collab with them. देख लो guys, अब आपको भेजना पड़ेगा. Also, because this is something that you are any brand or any client that is still in your heart, like आपको एकदम से ऐसा लगाओ कि यार, you know, they have a bigger vision, or somebody, you know, this can be one piece of advice for anybody who wants to get their marketing done, but अभी, you know, they don't have the budget of getting it done by somebody. So ऐसा क्या, you know, something is there जो आपको एकदम से सुन के लगता है कि यार अगर इस बंदे ने ये कर लिया तो आगे तो हम इसको पहुंचा ही देंगे. ऐसा कोई कुछ मेरे को स्पेसिफिक नहीं है कुछ क्योंकि मैं इतना देखती हूँ ना चारू, हर हाँ. दिन इतना देखती हूँ, इतना मतलब अब मेरा ब्रेन रॉट, अगर आप घुस गए मेरे ब्रेन में, इतने ब्रांड्स है. मैं सच्ची में गुस्सा जाती हूँ. I really want to see इतना सब कुछ लेके कैसे बैठी है एकदम इतना प्यारा सा, and she's so नहीं. calm and she's like ठीक है, okay, this is how it is, this is how it is. All right, so we come to a Yeah. wrap like this. Thank Anything you so that you much. want to share, like to the camera, to the audience who's watching this No, podcast. I just want to ask that what is your best piece of advice and worst piece of advice? अरे बाबा, I want to tough question. because आपकी ऑडियंस आपसे ये जानना चाहेगी. अरे यार, मैंने सच्ची नहीं सोचा था कि ये बैकफायर करने वाला है मेरे अरे आप पे. पॉडकास्ट होस्ट के साथ बैठे हो, कुछ तो करेगा बैकफायर. दिखा दिया इसने एक ही बार में कि मैं पॉडकास्ट होस्ट हूँ. I am the founder of Just Because. Yeah, just because I'm here, I'll ask you questions. Oh, Baba, what is my best piece of advice? Not just an advice. I just feel like anybody who says me that just do it, regardless of anything. That is the best thing anyone can say to me, you know, regardless of knowing the reason or anything. When they just say, you like it, do it. That's it. That's the best piece of advice. The worst piece of advice is कि जब आपको आगे पीछे का कुछ नहीं पता, don't say me a no. I really hate listening to no on something which I wanna do. मुझे मत बोलो, नहीं, मुझे नहीं सुनना है. मतलब मेरे लिए वो वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस है. मुझे जो भी दे रहा है, मैं उसको बोल रही हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है, और आई एम थिंकिंग टू डू समथिंग ऑफ दिस, और आई एम जस्ट थिंकिंग राइट नाउ, राइट. डोंट स्टॉप मी ओवर देयर. डिमोटिवेट मत करो. हाँ, मतलब मत करो. लेट मी फिगर इट आउट माई सेल्फ. आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट वॉन्ट यू टू टेल मी द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ इट. ऑफ कोर्स आई वॉन्ट दैट, बट I don't want to listen to a clear no to something that I'm maybe just starting, or it's a baby for me. So anyone who is watching this podcast, that is the worst and the best piece of advice that, you know, you will also ever get. Somebody who's Yeah. supporting you and somebody who's demoting. And if your friend or someone wants to, you know, is telling them that they want to start something or they're thinking of something, Yeah. always say try. Yeah, Always say try. yeah. करके देख. हाँ, कर ले. ठीक है, अरे यार ऊपर होगा नीचे होगा, हाँ, कहीं भी तेरे जाएगा. दिमाग में वो तो होएगा ना कि तूने करा. हाँ, कर लिया ना, करके देख लिया ना, और हम खड़े हैं ना यार. हम Yeah. दोस्त किस बात के हैं अगर तेरे को सपोर्ट नहीं Yeah. किया किसी चीज Yeah. में. तो that's how we come to a wrap, and I've made a new friend. Yes. मतलब we are like, because it is going to be a lovely collab with you. Like I really feel like the audience really aligns to whatever we are saying. And in case if you guys have still any questions and you feel like, you know, there is some piece of advice that she can give you, because she's into marketing, content, and everything, you know, I feel like that she is the coolest person to talk to. She'll tell you, or she'll take you on places you haven't even thought of. Because मुझे लगता है कि the question you have this why, ये ना मैं एक बार को भूल सकती हूँ, पर आप नहीं भूल सकते. Everything, you know, why this is happening, or why are you doing this, why are you, and we want somebody to ask you those why or those questions, and it is so important because you yourself understand कि अच्छा मैं ये क्यों कर रहा हूँ. है ना, कभी कभी हम सब कुछ बस ऐसे कर लेते हैं. So Yeah. she's the right person to go to Please. for that. Please, DMs And- are always open, or comment section is always open. Love her podcast. Do check her out. Thank Don't you forget to so follow her much. on Instagram Thank you, as well. Thank you. Please subscribe to both our channels, guys. I know that 90% of you have not subscribed. अरे बाबा, इतना सच नहीं. अब जाते जाते फिर एक ट्रूथ बॉम्ब डाल दिया है इसने. चलो, bye guys. Take care. Thank you everyone.